Good morning, students of class 9th. Today I am going to teach you English literature. Okay, lesson 8, part 2nd. Okay, Maria Sharapova. Okay, about the lesson, Maria Sharapova is a Russian professional tennis player. She lives in the US, yet she plays under the banner of Russia. She is highly proud of her being a Russian. She says, "It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian." Okay. Sharapova was born on 19 April 1987. Through her dedication and endure and dedication and unwavering desire to succeed, she reached the summit of women's tennis. She says, of course, money is a motivation, tennis is a business and a sport, but the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going. Okay. अब देखिए, मारिया शारापोवा, a Russian girl. Maria Sharapova reached the summit of women's tennis when she was barely 18. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and Santosh Yadav. Okay. Then there is something disarming about Maria Sharapova. Something disarming about Maria Sharapova. Something at odd with her ready smile and glamorous attire, and that something in her lifted her a Monday, 22 August 2005. To the world number one position in women's tennis. All this happened in almost no time, paused beyond her years. The Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Okay, यानी यहाँ पे ये बताया गया है, ऑथर कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मारिया शारापोवा में कुछ ऐसा आकर्षक ज़रूर है, यानी उसमें ऐसा अट्रैक्ट करने वाला आकर्षक ज़रूर है जो कि उसको तत्पर मुस्कान और मोहक वस्त्रों से मेल नहीं खाता. ठीक है, और उसके भीतर के कुछ ऐसी बात है उसके अंदर. उसे सोमवार 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस में, यानी महिला टेनिस में विश्व में प्रथम स्थान तक पहुंचा दिया. यह सब देखते देखते ही हो गया था. अपनी अवस्था उम्र से परे कहीं शांत व विश्वस्त साइबेरिया में जन्मी किशोरी को एक व्यवसायी खिलाड़ी के रूप में चोटी तक पहुंचने में केवल 4 वर्ष लगे थे. ओके, ओनली 4 years. However, second para. However, the rapid Maria Sharapova won the women's singles at Wimbledon in 2004. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before. With a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom, but it also required a heart-wrenching 2 years separation from her mother Yelisa. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. The 9-year-old girl
had already learnt an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. Okay, यानी सेकंड पैराग्राफ में ऑथर कहते हैं, उन्होंने बताया कि हम बताते हैं कि मारिया शरापोवा जो है, मारिया शरापोवा वो बहुत तीव्र यानी बहुत टैलेंटेड थी, बहुत ही टैलेंटेड थी। तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक संसार में त्वरित उत्थान यानी तुरंत ही वो अपना उत्थान चाहती थी, यानी प्रोग्रेस करना चाहती थी। 9 वर्ष पहले ही बलिदान के उस स्थान के साथ प्रारंभ हो गया जिसे सहने को शायद कोई बच्चा तैयार ना होता, और शायद होता भी। छोटी मारिया ने अभी अपना 10वां जन्म दिवस भी नहीं मनाया था कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण पाने के लिए भेज दिया गया। अपने पिता यूरी के साथ की गई फ्लोरिडा की यात्रा ने यानी फ्लोरिडा की यात्रा ने उसे सफलता व स्टारडम के मार्ग पर ला खड़ा किया, लेकिन उसे उसकी माता येलेना यानी माता का नाम येलेना था से 2 वर्ष के हृदय दुखा देने वाले विछोह की आवश्यकता भी थी। अवरोध यानी वो जा रही थी, लेकिन प्रोग्रेस के पथ पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन पेरेंट्स से बिछड़ने का उनको दुख था। ओके, अवरोध यानी दूसरी वाली अर्थात मारिया की माता येलेना वीजा के अवरोध के कारण साइबेरिया में ही रहने पर बाध्य हो गई थी। 9 वर्ष की बालिका पहले ही से जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सीख चुकी थी कि टेनिस में श्रेष्ठता एक कीमत चुकाने पर ही आएगी। यानी कीमत किसकी? हार्ड वर्क और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, अब देखिए थर्ड स्टैंजा। आई यूज्ड टू बी सो लोनली, मारिया शरापोवा रिकॉल्स। आई मिस्ड माई मदर terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. ओके, यानी वो इस पैराग्राफ में बताती हैं कि मैं बहुत अकेली हुआ करती थी। ठीक है, बहुत अकेली हो गई थी। और मारिया शरापोवा याद करती हैं, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। मेरे पिता जितना कर सकते थे उतना काम कर रहे थे। वे मेरे टेनिस के प्रशिक्षण को जारी रख सकें, इसलिए वे भी मुझसे नहीं मिल सकते थे। ओके, बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM. द अदर टेनिस पीपल्स वुड केम इन एट 11 PM and wake up and order me to tidy up the room and clean it. ओके, पता है वहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि मैं बहुत छोटी थी इसलिए मैं रात 8 बजे सो जाया करती थी। ओके, और ये गुण भी मारिया के अंदर बहुत अच्छा था। ओके, यानी छोटी थी और रात 8 बजे सो जाया करती थी। दूसरे टेनिस के प्रशिक्षक जो 11 बजे रात को आते थे मुझे उठा देते थे, मुझे कमरा व्यवस्थित करने और इसे साफ करने को बोलते थे। प्लीज़ टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलटिए। 5. Instead of letting and depress me, I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, when it makes you very hungry and determined, I would have put up with much more humiliation and insults than that to study steadfastly and pursue my dream. ओके, यानी वो बताती हैं, शरापोवा आगे बताती हैं इस पैराग्राफ में कि उससे हतोत्साहित होने के बजाय, यानी वहाँ पर कोई मेरी टेक केयर करने वाला कोई नहीं था, वहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे, तो किस तरह से वो एडजस्ट हो वहाँ पर। ओके, तो वो कहती हैं कि उसने हतोत्साहित होने के बजाय मैंने अधिक शांति से दृढ़ निश्चय कर लिया और मानसिक रूप से अपने को कठोर बना लिया। मैंने अपनी देखभाल करना सीख लिया। मैंने कभी भी
छोड़ने का निश्चय नहीं, मैंने कभी भी छोड़ने का नहीं सोचा। ओके, ये नहीं सोचा कि कभी मैं उसको छोड़ दूँ, यानी और एडजस्ट होने की कोशिश मैंने वहाँ पर की। ठीक है, और अपने को कठोर बना लिया। ओके, मैंने अधिक शांति से दृढ़ निश्चय कर लिया, मानसिक रूप से अपने को कठोर बना लिया और मैंने अपनी देखभाल करना सीख लिया। मैंने कभी भी छोड़ने का निश्चय नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था मैं क्या चाहती हूँ। जब आप शून्य से आते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता, तब आप भूखे तथा दृढ़ निश्चय हो जाते हैं। मैं अपने सपने को स्थिरतापूर्वक साकार करने के लिए कहीं अधिक अवमानना व अपमान सह लेती। ओके, यानी वो जैसे जैसे मेरे को गाइड करते, जैसे नए लोग थे, वहाँ नए खिलाड़ी थे, उसी तरह से मैं उसी सांचे में ढल जाती। ओके, 6th स्टैंजा, दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। ओके, it was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. ओके, यानी इस 6 स्टैंजा में लेखक कहते हैं कि यही कठोरता आज भी मारिया में प्रवाहित हो रही है। यही उसके विम्बलडन में 2004 में महिला एकल पदक जीतने तथा अगले वर्ष विश्व में प्रथम स्थान तक तेज़ी से उन्नति की कुंजी थी। ओके, यानी इसी हार्डवर्क और मेहनत से वो आगे बढ़ी। नेक्स्ट 7th स्टैंजा, while her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans. For the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. The straight looks at the answers she gives when she asked about her ambitions make it clear that she considers the sacrifices were worth it. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. ओके, यानी जबकि उस जो मारिया थी, जबकि उसकी साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से महिला टेनिस की चोटी तक की यात्रा ने टेनिस के चाहने वालों का मन जीत लिया है। यहाँ यह किशोरी किसी भी भावुकता को स्थान प्रतीत नहीं होती थी। ठीक है, सीधे सच्चे नए नक्श और वे उत्तर जो तब वह देती है जब उसकी उच्चाकांक्षा के विषय में पूछा जाता है, इस बात को अत्यधिक स्पष्ट कर देते हैं कि वह मानती है कि मेरे बलिदान इसी योग्य थे। मैं बहुत बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हूँ। मैं जो कुछ करती हूँ उसमें बहुत मेहनत करती हूँ। यही मेरा काम है, यही सफलता का उसका मंत्र है। ओके, और इनका सफलता का मंत्र है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ओके, एंड अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए चाइल्ड हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ओके, अब देखिए 8th पैराग्राफ, दाव मारिया शरापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस्ड American accent. She proudly parades her Russian nationality, clearing all doubts. She says, I am Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. ओके, यानी 8th पैरा में वो बताती हैं कि यद्यपि मारिया शरापोवा स्पष्ट अमरीकी लहजे में बोलती हैं, वो कहती हैं कि गर्व से अपनी रूसी राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करती हैं। सारे संदेहों को दूर करते हुए वो कहती हैं कि मैं रूसी हूँ, रशियन हूँ। यह सच है कि अमेरिका मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा है, लेकिन मेरे पास रूसी नागरिकता है। ओके, मेरी जो सिटीजनशिप है वो
रूस की है। मेरा रक्त पूर्णतः रूसी है, रशियन है। यदि वे चाहे तो मैं ओलंपिक में रूस के लिए खेलूँगी। ओके, 9th पैराग्राफ, लाइक एनी नंबर। देखिए, लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolates spread and फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। ओके, यानी इस पैराग्राफ में बताती हैं वो कि असंख्य लोकप्रिय किशोर सितारों की भांति मारिया शारापोवा को भी फैशन, गायन, नृत्य को अपनी रुचि की सूची में सम्मिलित करती हैं। यानी उनको इन चीज़ों में रुचि थी, ठीक है, फैशन में, गायन में, नृत्य में, ठीक है। उसे आर्थर कोनन डॉयल के उपन्यास पढ़ना पसंद है, ठीक है। परिष्कृत शांत परिधानों के प्रति उनका लगाव उसके चॉकलेट लगे चिल्लों तथा बुलबुलेदार नारंगी पेयों के प्रति प्रेम से मेल खाता प्रतीत नहीं होता है। ओके, 10th पैराग्राफ, मारिया शरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू sacrifice have lifted her to the top of the world. Few would grudge her the riches she is how reaping. This is what she too say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport, but the most important thing is to become number 1 in the world. That's the dream that kept me going. Okay, यानी लास्ट में मारिया शरापोवा जो हैं वो बताती हैं शरापोवा को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। उनकी जो योग्यता है, जो उनमें एबिलिटी है सफल होने की, अपरिवर्तनशील इच्छा तथा बलिदान के लिए तत्परता ने उसे संसार की चोटी तक पहुंचा दिया, है ना। शायद ही कोई उसके उस धन के प्रति दुर्भावना रखता होगा जो कि वह अब अर्जित कर रही है। उसे टेनिस से अपने आर्थिक लाभ के विषय में यही कहना है। निस्संदेह धन एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। ओके, टेनिस एक व्यापार और खेल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात संसार में प्रथम होना है। ओके, यही वह स्वप्न है जिसने मुझे बनाए रखा है। ओके, इज दैट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.